Bismillah Rahman Rahim. This is lecture 6. In this, we will study about the baseband carrier communication and the uh, amplitude modulation, types of amplitude modulation, and we will study one of the type of the amplitude modulation. But before that, let us study about the baseband communication and carrier communication. As we studied earlier, that baseband signal is a signal which is baseband signal is referred to as original signal, the output signal of the input transducer, or the output of the output signal of the source is termed as baseband signal. So, in baseband communication, the message signals are directly transmitted without any modification. Means that there is no modulation involved in baseband communication. As the message is produced or is produced by the source, it is directly transmitted over the channel. Need not to transfer the spectrum of the source signal or the original signal to another frequency, but it is directly transmitted over the channel. So if this is the communication method, this type of communication is termed as baseband communication. In baseband communication, the dedicated channels are allotted to users, and is the frequency division multiplexing cannot be adopted or cannot be used, as there is no modulation involved. So this is what the baseband communication is known as. Next is the carrier communication. In carrier communication, the message signal is modulated. The message signal or the baseband signal is contain the lower frequencies, and those low frequency signal is translated to some higher frequency by mean of modulation. Um, that is why carrier is used to transmit for the modulation purpose and for the transmission of that message. That is why this type of communication is termed as carrier communication. As I have written, uses modulation to shift the frequency spectrum of a signal is known as carrier communication. Next, we define the amplitude modulation and angle modulation. We defined in a previous lecture that modulation is a process in which one of the basic parameters, amplitude, frequency, or phase of a sinusoidal carrier of high frequency, having we term that frequency as Fc or omega c, and that frequency that carrier signal is varied with baseband signal or message signal mt. So this results in amplitude modulation, frequency modulation, or phase modulation. Depends whether we are changing the amplitude of the carrier signal, phase of the carrier signal, or the frequency of the carrier signal. So let us consider a sinusoidal signal. For example, S of t is a carrier signal having frequency omega c, phase phi of t, and at is the amplitude of this carrier signal. So in the above sinusoidal signal, there are three variables. One is the amplitude at, second is frequency omega c, and third is phase phi of t. Now, the message signal mt
can be used to modulate. Modulate means to change or to vary any of these three parameters to allow ST to carry information from transmitter to receiver. As we studied that the source signal or the baseband signal contains the information, and we need to send that signal from source to the receiver. So for our ease of transmission, that source is that information, that the information in the source signal is embedded in the carrier signal. And how that is embedded in the carrier signal, by changing either the amplitude of the carrier signal with respect to the amplitude of the carrier signal with respect to the message signal, or the frequency of the carrier signal is changed with respect to the message signal in order to embed the information in the message signal in the carrier signal, or the phase of the carrier signal is changed with respect to the message signal, ताकि इसमें जो सोर्स सिग्नल में जो इन्फॉर्मेशन है वो कैरियर सिग्नल में आ जाए, और फिर कैरियर सिग्नल चूंकि हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है तो हम उसे इजीली वायरलेसली भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग भी कर सकते हैं. नाउ if the amplitude AT of the carrier signal varies with the message signal MT, अगर तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है मैसेज सिग्नल के हिसाब से, तो दिस इज़ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. फिर इसे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं. इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल is linearly varied with m of t with respect to the message signal, this type of modulation is termed as frequency modulation. And if phase of the carrier signal is changed with respect to the message signal, this type of modulation is termed as phase modulation. Now let us take start from the amplitude modulation. So first of all we will try to know the types of the amplitude modulation. Broadly we define that amplitude modulation, in amplitude modulation the amplitude of the carrier signal is changed with respect to the message signal. Now how that the amplitude of the carrier signal is changed, based on that we have different types of the amplitude modulation. For example, the first one is termed as DSB-SC, double sideband suppressed carrier. We will study why it is termed as double sideband suppressed carrier. The second one is named as double sideband with carrier. Some text refer to it as double sideband full carrier, and normally whenever we say amplitude modulation, so we will be referring to double sideband with carrier. अगर आप नाम सुने कि डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से जनरली हमारी मुराद डबल साइड बैंड विथ कैरियर, ये जो टाइप है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, इससे होगी. ठीक है जी. द थर्ड टाइप ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज SSB सिंगल साइड बैंड, and fourth one is vestigial sideband VSB, and fifth one is the quadrature amplitude modulation QAM. So these are the type of the amplitude modulation. We will try to cover all these type of modulation one by one, and we'll study why it is named as why इनका नाम की वजह क्या है, क्यों इनको ये कहा जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे. ठीक है जी.
So let us start by studying double sideband suppressed carrier DSB-SC. So as it is the type of the amplitude modulation, so amplitude A of the carrier signal is linear function of the baseband signal. Baseband signal is a message signal MT. ये टाइप तो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, इस वजह से कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होगा मैसेज सिग्नल की वजह से. और however the carrier frequency omega c or fc and phase remains constant. डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड तो चेंज होगा, लेकिन कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और फेज वो एज इट इज़ रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी. नाउ कंसिडर कैरियर सिग्नल गिवन बिलो. A cos omega ct plus phi c. Now 5c is the phase, initial phase, so we assume that initial phase is 0, and the amplitude of the carrier signal is assumed to be equal to 1. A equal to 1 और phase इसका 0 है. Therefore the carrier signal ct will be equal to cos omega ct. Now if carrier signal amplitude A is made directly proportional to modulated signal mt, then modulated signal is mt cos omega ct. Now आप बताएं कि कैरियर सिग्नल का ये जो एम्पलीट्यूड है A, ये A हमने कहा कि A इक्वल टू 1 है. अब ये A ये मैसेज के सिग्नल, मैसेज का जो मैसेज सिग्नल है MT, वो डायरेक्टली इसके हिसाब से इसको प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूलेटेड सिग्नल. यानी एम्पलीट्यूड जो है कैरियर सिग्नल का वो डिपेंडेंट हो ऑन द मैसेज सिग्नल. सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कैरियर सिग्नल को और मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दें. अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका फेज़ और उसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर की वो तो सेम रहेगी, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो जो है वो चेंज होता रहेगा जैसे जैसे उसका मैसेज का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, ज़्यादा होगा मैसेज का एम्पलीट्यूड तो कैरियर का एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा हो जाएगा. अगर मैसेज का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी कम होता जाएगा. यानी कि आपने क्या है कि कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल की मल्टीप्लिकेशन से कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वो प्रोपोर्शनल हो गया मैसेज सिग्नल के. सो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा हमारा वो ये होगा, इसको हमने नाम दिया Vt का, Vt इक्वल टू mt cos omega ct. This type of modulation shifts the spectrum of mt to carrier frequency. अभी हुआ क्या है कि mt का जो स्पेक्ट्रम है, हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रम उसका कहाँ पे है, और वो अभी शिफ्ट हो गया है कैरियर की फ्रीक्वेंसी पे. यहाँ जो याद रखने की बात है वो ये है कि MT को, जो MT हमारा मैसेज सिग्नल है, उसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं. ये VT जो है दिस इज़ नेम्ड एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड CT इज़ द कैरियर सिग्नल. नाउ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल VT cos omega CT will travel over the channel and our information is now embedded in this modulated signal. This modulated signal contains the information which we need to transmit. यानी जो हमारी इंफॉर्मेशन थी मैसेज सिग्नल में वो अभी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में आ गई. मॉड्यूलेटेड सिग्नल को आप ट्रांसमिट करेंगे मीन्स कि आपने वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की. लेकिन मॉड्यूलेशन क्यों ज़रूरी थी ये हमने पहले पढ़ा है
के मॉड्यूलेशन हम किस वजह से करते हैं, क्यों ज़रूरी है। ठीक है जी। MT is the source message signal which contains the information and need to be transmitted by the sender to its receiver or receivers. Now, by taking its Fourier transform, we can know its spectrum. Fourier transform was the second lecture कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है। आप का मैसेज, आप किसी सिग्नल के टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं। एक सिग्नल का टाइम डोमेन होता है, वहाँ पे आपको टाइम और एम्पलीट्यूड की इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि इस सिग्नल में ये फॉर एग्जांपल एक सिग्नल है तो ये इसका टाइम डोमेन है। इसमें इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि इस इंस्टेंट पे इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है। ठीक है जी। और एक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है, उसमें आपको मिल रही होती है कि इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या है, यानी इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, कौन सी हायर फ्रीक्वेंसी है, कौन सी लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में पता चलता है। आप टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे आते हैं? बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म। आप किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो क्या करता है फोरियर ट्रांसफॉर्म कि आपको सिग्नल के टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले चलता है। ठीक है जी। नाउ MT इज द टाइम डोमेन ऑफ मैसेज सिग्नल और MF उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन है। ठीक है जी। नाउ मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होगा? MT cos 2 पाई FCT। वो हमने यहाँ पे लिखा है कि वो है 1/2 M of F प्लस FC प्लस M of F माइनस FC। सिग्नल एंड सिस्टम के कोर्स में हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल ये XT है और ये एक दूसरा सिग्नल है XT प्लस 2 और ये एक तीसरा है X of T माइनस 2। तो ये XT सिग्नल है। XT प्लस 2 क्या हुआ है कि यही XT सिग्नल है, लेकिन XT प्लस 2 ये शिफ्ट हुआ है लेफ्ट पे, यानी एडवांस हुआ है 2 यूनिट, ये एडवांस हुआ है। और XT माइनस 2 क्या हुआ है? यही XT सिग्नल है, लेकिन ये राइट पे शिफ्ट हुआ है 2 यूनिट, यानी डिले हुआ है। ठीक है जी। ये आप अगर वो नहीं है तो ये सिग्नल शिफ्टिंग आप दोबारा देख लें तो आपको याद आ जाएगा कि इससे क्या मुराद है। तो यहाँ पे ये शिफ्टिंग जो है M of F प्लस FC हुई शिफ्टिंग है, लेकिन चूंकि ये फ्रीक्वेंसी में हुई है तो M of F जहाँ पे था वहाँ से ये FC लेफ्ट पे गया है, यानी एडवांस हुआ है, और ये FC डिले हुआ है, यानी राइट पे गया है। ठीक है जी। कैसे ये हमने फाइंड किया है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, या फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपने ये करना है। ठीक है जी। एज वी नो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हमें पता है कि अगर आपने किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो XT का फॉर एग्जांपल हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो X of F, ये XT का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। X of F इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल XT e पावर माइनस J2 पाई FT dt। ये इंटीग्रल आपको किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करके देता है। ठीक है जी। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है। नाउ टू फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ MT cos 2 पाई FCT, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ने फाइंड करना है तो हमें पता है कि MT cos 2 पाई FCT इक्वल टू cos को आप यूलर आइडेंटिटी से ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos इक्वल टू e पावर J2 पाई FCT प्लस e पावर माइनस J2 पाई FCT डिवाइडेड बाई 2, और M ऑफ टी मल्टीप्लाई हुआ है, M ऑफ टी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा MT बाई 2 e पावर J2 पाई FCT प्लस MT बाई 2 e पावर माइनस J
टू पाई एफ सी टी। ठीक है जी। नाउ आप इसका अलग से फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लें, इसका अलग से ले लें, जैसे यहाँ मैंने लिया हुआ है। तो ये होल आपका एक सिग्नल है। ठीक है जी, ये होल आपका एक सिग्नल है। जैसे ये ब्रैकेट मैंने इनक्लोज किया हुआ है एम टी डिवाइड बाई टू ई पावर जे टू पाई एफ सी टी, और ये जो माइनस टू पाई एफ टी है ये फार्मूले वाला है। ठीक है जी। प्लस माइन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एम टी डिवाइडेड बाई टू ई पावर माइनस जे टू पाई एफ सी टी, ये तो सिग्नल हुआ। और जिसका आप फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं ये फार्मूले वाला ई पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी, ये आ गया आपके पास। ठीक है जी। आप जे टू पाई टी कॉमन ले लें दोनों से, एम टी ई वन और टू बाहर चला जाएगा, ई पावर माइनस जे टू पाई, और ये एफ माइनस एफ सी रह जाएगा, और ये हो जाएगा वन और टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एम टी ई पावर माइनस जे टू पाई बाहर ले लें, अंदर क्या रह जाएगा एफ प्लस एफ सी डी टी। नाउ ये जो आपके पास इंटीग्रल आ गए दो, इनको कंपेयर कर ले ये फूरियर के फार्मूले से। अगर आपने एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो ये उसका फार्मूला है एक्स ऑफ एफ इक्वल टू एक्स टी ई पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी। ठीक है जी। यहाँ इसमें हमारे पास एक्स टी नहीं है बल्कि एम टी है, तो एम ऑफ एफ हो जाएगा। यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे आपके पास एक्स ऑफ एफ आ रहा था। यहाँ पे हमारे पास एफ माइनस एफ सी है तो क्या जाएगा इस इंटीग्रल का फूरियर ट्रांसफॉर्म एम ऑफ एफ माइनस एफ सी, और वन टू कांस्टेंट है वो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें अगर इससे कंपेयर कर लें तो माइनस जे टू पाई तो आ रहा है, यहाँ एफ है और यहाँ क्या है एफ प्लस एफ सी है, तो ये आ जाएगा वन और टू एम ऑफ एफ प्लस एफ सी। ये आप कंपेयर कर लें तो आपको आसान रहेगा कि ये कैसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है जी। देयरफॉर एम ऑफ एफ सी इज एक्चुअली एम ऑफ एफ शिफ्टेड टू राइट बाई एफ सी। जैसे मैंने आपको टाइम शिफ्ट की बात बताई, यहाँ पे टाइम नहीं है बल्कि फ्रीक्वेंसी है, शिफ्टिंग तो वही शिफ्टिंग है। तो एम ऑफ एफ माइनस एफ सी इज एक्चुअली एम ऑफ एफ शिफ्टेड टू राइट बाई एफ सी, एंड एम ऑफ एफ प्लस एफ सी इज एम ऑफ एफ शिफ्टेड टू लेफ्ट बाई एफ सी। यानी ये एम ऑफ एफ डिले हुआ है कितने यूनिट से एफ सी से, और ये एम ऑफ एफ प्लस एफ सी एम ऑफ एफ एडवांस हुआ है कितने यूनिट से एफ सी से। अच्छा, ग्राफिकली हम इसका देख लेते हैं कि कैसे आता है। फॉर एग्जांपल एफ एम टी का ये टाइम डोमेन है प्लाट है हमारे पास, और ये उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लाट है एम ऑफ एफ का। तो आप यहाँ से एम ऑफ एफ का आपके पास आगे कि इसमें हायर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये लाइन बजाय ठीक है ये एफ है, चूँकि फ्रीक्वेंसी डोमेन की हम बात कर रहे हैं, तो ये ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पे उसका ये स्ट्रेंथ है, ये एम्पलीट्यूड है, और ये हायर फ्रीक्वेंसी इस पे क्या है बी है। अच्छा, फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा है कि जो रियल सिग्नल होगा, रियल सिग्नल वो सिमेट्रिक होगा, यानी जो फ्रीक्वेंसीज उसमें पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज होंगी वही उतनी ही नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज होंगी। ठीक है जी। तो ये जो हायर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बी है, लोअर ज़ीरो है, तो बैंडविड्थ कितना हुआ बी। ये जो है ये वही फ्रीक्वेंसी है जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ई पावर माइनस जे टू पाई एफ सी टी। ठीक है जी। और है यहाँ पे देखें थोड़ी ई पावर जे टू पाई एफ सी टी,
और एक है e⁻−j2π fct। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ सी, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। मीन कि अगर आप फेज़र प्लाट इसका प्लाट कर दें तो ये फ्रीक्वेंसी अगर ये ऐसे क्लॉकवाइज में रोटेट कर रही है नेगेटिव वाली, तो पॉजिटिव वाली क्या करेगी? वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। जस्ट डिफरेंस यही है एक इसके एक्सपोनेंशियल सिग्नल के हिसाब से, बाकी फ्रीक्वेंसी वही है। ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी ये बी हर्ट्स है हायर, जो माइनस बी है वो जस्ट उसका नेगेटिव है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो इक्वल है। हायर फ्रीक्वेंसी यही बी है और लोअर क्या है? ज़ीरो है। तो बैंडविड्थ इसका कितना बन रहा है? b-0 बी हर्ट्स। बी कोई नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 2 किलो हर्ट, 3 किलो हर्ट, या जो आपके पास है। ठीक है जी। अच्छा, कैरियर सिग्नल को आप देखें, कैरियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। ठीक है जी। cos ओमेगा सी टी हमने लिखा है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप लेंगे तो एक यूनिट इम्पल्स आ जाएगा एफ सी पे, एक यूनिट इम्पल्स आ जाएगा माइनस एफ सी पे। ठीक है। इसमें चूंकि एक ही फ्रीक्वेंसी है और वो क्या है? एफ सी। ठीक है, एक ही फ्रीक्वेंसी है और वो एफ सी है। ठीक है जी। अच्छा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एम टी cos ओमेगा सी टी को दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्टेंट जो हमारे पास आ रहा है वो एम टी cos ओमेगा सी टी। अच्छा, इनके प्रोडक्ट को प्लाट करने का तरीका ये है कि ये जो एम टी है इसका आप ऐसे डॉटेड बना दें। ठीक है जी। और इसका ये एम टी का अपर लिमिट हो जाएगा, और जो माइनस एम टी भी ऐसे बना दें, और इनको ये कैरियर सिग्नल के उससे फिल कर दें। तो ये एम टी cos ओमेगा सी टी आपके पास का प्लाट आ जाएगा। ठीक है जी। इन दोनों का इनका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेने के लिए हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी है उसमें है कि अगर सिग्नल टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा? उनके जो स्पेक्ट्रम है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो कन्वॉल्व हो जाएंगे। आप इसको इससे कन्वॉल्व कर देंगे तो एम ऑफ एफ इससे कन्वॉल्व होगा, तो होगा क्या कि ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। आप अगर ये कन्वॉल्व कर रहे हैं, एक हमने पढ़ा है कि एक्स ऑफ टी अगर कन्वॉल्व हो रहा है यूनिट इम्पल्स से डेल्टा ऑफ टी -2, सॉरी, तो और कुछ नहीं होगा, जस्ट ये सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट एक्स ऑफ टी -2। ऐसे अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वॉल्व कर रहे हैं तो होगा क्या? ये एम ऑफ एफ के बजाय एम ऑफ एफ माइनस एफ सी बन जाएगा। ये है ये एम ऑफ एफ माइनस एफ सी बन गया, और ये एम ऑफ एफ प्लस एफ सी बन गया। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है इसको हम कहते हैं अपर साइड बैंड, इसको कहते हैं लोअर साइड बैंड। ये लोअर साइड बैंड, ये अपर साइड बैंड। ये ज़ीरो उठ के आ गया एफ सी पे, तो ये जो बी है ये कहाँ पे चला जाएगा? एफ सी प्लस बी, और ये माइनस बी एफ सी माइनस बी पे आ जाएगा। अच्छा, ये माइनस एफ सी पे आ गया तो ये हो गया माइनस एफ सी प्लस बी, ये वाला जो इसका एंड है, और ये माइनस एफ सी माइनस बी पे। ठीक है जी। अच्छा, लिखा हुआ कि नोट दैट इफ बैंडविड्थ ऑफ एम टी इज बी हर्ट्स देन मॉड्यूलेटेड सिग्नल हैज़ अ बैंडविड्थ ऑफ 2 बी हर्ट्स। यानी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का बैंडविड्थ क्या होगा? वो डबल हो जाएगा। मैसेज सिग्नल का जितना बैंडविड्थ है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का उससे डबल हो जाएगा। अगर मैसेज सिग्नल का आपका बैंडविड्थ है 4 किलो हर्ट्स, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का बैंडविड्थ डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर के केस में वो 8 किलो हर्ट हो जाएगा, यानी उसके डबल हो जाएगा। Now modulated signal spectrum is centered at FC plus minus FC. Portion lies outside plus minus FC is upper side band. ये जो FC के आउटसाइड पे पोर्शन है। ठीक है जी।
दीज आर, ये प्लस एफ सी का आउटसाइड, ये माइनस एफ सी का आउटसाइड, दीज आर टर्म्ड एज लो अपर साइड बैंड एंड पोर्शन लाइज इनसाइड प्लस माइनस एफ सी इज लोअर साइड बैंड। जो पोर्शन एफ सी और माइनस एफ सी के दरमियान पे है उसको हम नाम देते हैं लोअर साइड बैंड। ठीक है जी। अच्छा, now modulated signal in this scheme does not contain a discrete component of carrier frequency fc। आप देखें कि यहाँ पे एफ सी का डिस्क्रीट कंपोनेंट कोई नहीं। ठीक है जी। तो इस वजह से इस सिग्नल को हम नाम देते हैं डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। ठीक है जी। यानी कैरियर का अलग से कंपोनेंट नहीं है। ठीक है जी। इसलिए ये इसको कहा जाता है डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। और उसके केस में आगे ये फिर और क्लियर हो जाएगा जब दूसरी टाइप हम पढ़ेंगे, वहाँ पे कैरियर का अलग से एक कंपोनेंट आएगा। ठीक है जी। तो ये फिर नाम और भी क्लियर हो जाएगा। और डबल साइड बैंड इसलिए कि दोनों साइड बैंड, अपर साइड बैंड भी ट्रांसमिट होता है, लोअर साइड बैंड भी ट्रांसमिट होता है, इसलिए इसको कहते हैं डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। इसलिए कि कैरियर का अलग से कंपोनेंट वो सेंड नहीं होता। अच्छा, डीमॉड्यूलेशन कैसे करते हैं? डीमॉड्यूलेशन is the process of recovering the signal from the modulated signal and is referred to as demodulation। ठीक है जी। process of recovering the signal from the modulated signal is referred to as demodulation। आपने modulated signal जो सेंड किया था वो तो आपने कैरियर सिग्नल में अपनी इंफॉर्मेशन डाली थी। अभी उस कैरियर सिग्नल का वो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उससे आप इंफॉर्मेशन दोबारा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी वो अपना सिग्नल उससे निकाल रहे हैं, तो इसको कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन में होता क्या है कि इट शिफ्ट्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम टू लेफ्ट एंड राइट बाई एफसी। हमने देखा कि मैसेज सिग्नल के स्पेक्ट्रम को एम ऑफ एफ को ये डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर क्या करता है, एफसी राइट पे शिफ्ट कर देता है, एफसी लेफ्ट पे शिफ्ट कर देता है, एम ऑफ एफ प्लस एफ सी, एम ऑफ एफ माइनस एफ सी। नाउ टू रिकवर ओरिजिनल सिग्नल empty from modulated signal, it is necessary to retranslate the spectrum to its original position। अभी मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपको जो रिसीव हो रहा है वहाँ तो उसका स्पेक्ट्रम शिफ्ट हुआ है एफ सी और माइनस एफ सी पे। आपने करना क्या है, डीमॉड्यूलेशन की दोबारा उसको अपनी पोजीशन में लेके आना है। और ये एफ सी और माइनस एफ सी पे गया कैसे था कि आपने कैरियर सिग्नल इससे मल्टीप्लाई किया था। दोबारा यहाँ पे लाने के लिए आप क्या करेंगे कि दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए आप दोबारा कैरियर सिग्नल मल्टीप्लाई कर दें। अगेन मल्टीप्लाई द मॉड्यूलेटेड सिग्नल एम्प्टी cos ओमेगा सी टी बाई कैरियर सिग्नल। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्पेक्ट्रम वो अगेन एफ सी राइट और एफ सी लेफ्ट पे चला जाएगा। अगेन एफ सी राइट लेफ्ट पे जाएगा तो राइट पे जाएगा तो 2FC पे चला जाएगा और 0 पे आ जाएगा। लेफ्ट पे जाएगा तो 0 पे भी आएगा, एम ऑफ एफ सेंटर हो जाएगा और -2FC पे भी चला जाएगा। यहाँ पे आप मैथमेटिकली आप देखें फिर ये क्लियर हो जाएगा। एम्प्टी cos ओमेगा सी टी ये तो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, आपने डीमॉड्यूलेशन के लिए cos ओमेगा सी टी मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा एम्प्टी cos स्क्वायर ओमेगा सी टी। एम्प्टी ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ये आप को पता है कि cos स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + cos 2 ओमेगा सी टी डिवाइड बाई 2। एम्प्टी मल्टीप्लाई कर दें, 1 और 2 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा आपके पास 1 और 2 एम्प्टी प्लस 1 और 2 एम्प्टी cos 2 ओमेगा सी टी
अभी यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पास मैसेज सिग्नल तो आ गया 102 एम्प्टी, लेकिन साथ में ये भी आ रहा है। लेकिन ये आपको पता है कि कहाँ पे सेंटर्ड है, 2 ओमेगा सी टी यानी 2 FC पे। तो आप अगर यहाँ इसको लो पास फिल्टर से पास कर दें तो होगा क्या, इसकी तो फ्रीक्वेंसी लोअर है, लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी इसमें होंगी, और ये तो हाई फ्रीक्वेंसी 2FC पे है। तो ये स्टॉप हो जाएगा और ये आपके पास रिकवर हो जाएगा जो आपका मैसेज सिग्नल है। ठीक है जी। Thus we obtain desired signal MT plus an unwanted spectrum at plus minus 2 FC which can be suppressed by low pass filter। ठीक है जी। Therefore demodulation is almost identical to modulation, that is consist of multiplication of incoming modulated signal MT cos omega CT by a carrier signal cos omega CT फॉलोड बाय अ लो पास फिल्टर। यानी कि डीमॉड्यूलेशन भी मॉड्यूलेशन ही की तरह है। मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, ये आप देखें, ये आपके पास मैसेज सिग्नल है, आप कैरियर सिग्नल से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाता है एम्प्टी कॉस ओमेगा CT। डीमॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि वही जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो आपको रिसीव हो रहा है एम्प्टी कॉस ओमेगा CT, अगेन आप उसी फेज फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल मल्टीप्लाई करते हैं कॉस ओमेगा CT, आपके पास ET जो है, इस प्रोडक्ट को हम नाम दे रहे हैं, उसको लो पास फिल्टर से पास करते हैं, आपके पास आ जाएगा 1/2 MT। दिस मेथड ऑफ रिकवरिंग बेस बैंड सिग्नल इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस डिटेक्शन और कोहेरेंट डिटेक्शन। अच्छा, यहाँ पे 1/2 MT आ रहा है, तो 1/2 का मीन्स कि उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ है। आगे आप उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इससे ये 1/2 से जान छुड़ाने के लिए यहाँ अगर 2 cos ओमेगा CT मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये 1/2 नहीं आएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये स्पेक्ट्रम ऑफ MT cos ओमेगा CT थोड़ी देर पहले हमने देखा पिछली स्लाइड में कि वो ये है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ ET MT cos स्क्वायर ओमेगा CT वो क्या होगा, वो ये होगा कि आपने इसके साथ अगेन कैरियर सिग्नल मल्टीप्लाई किया, तो इसके साथ अगर अगेन कैरियर सिग्नल आप मल्टीप्लाई कर दें cos ओमेगा CT तो इससे ET बन जाएगा। तो कैरियर सिग्नल मल्टीप्लाई होने का उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि ये स्पेक्ट्रम जो है ये FC राइट पे जाएगा और FC लेफ्ट पे जाएगा। FC राइट पे जाएगा तो ये क्या होगा, FC प्लस FC 2FC हो जाएगा, और ये माइनस FC प्लस FC ये यहाँ पे आ जाएगा 0 पे। ठीक है जी। और माइनस FC प्लस B, सो माइनस FC प्लस FC ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस FC प्लस FC कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस B पे आ जाएगा। अच्छा, ये लेफ्ट पे जब जाएगा, जब ये लेफ्ट पे जाएगा तो मीन्स के FC माइनस FC सॉरी FC प्लस FC होगा, सॉरी FC माइनस FC होगा, तो ये FC माइनस FC 0 पे आ जाएगा, और ये माइनस FC 2FC माइनस FC 2FC प्लस B, और ये माइनस 2FC, ये आप देख लें। तो ये आपके पास अभी ये स्पेक्ट्रम, ये आपका ओरिजिनल सिग्नल है, लो पास फिल्टर आप लगा दें, ये पास हो जाएगा, ये दोनों स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है जी। और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ET ये आप फाइंड कर सकते हैं, वो ये आपके पास आ रहा है 1/2 MF प्लस 1/4 M ऑफ F प्लस 2FC प्लस M ऑफ F माइनस 2FC। ठीक है जी। तो ये हायर फ्रीक्वेंसी है, इसको आप स्टॉप कर सकते हैं लो पास फिल्टर से, और ये आप इसको सिर्फ ये रिकवर हो जाएगा। थैंक यू।